velocity, distance and displacement. So today we are going to study the further topics. They are average speed, average velocity, acceleration and the graphical representation of the motion. So our first topic is average speed. Average speed. Average speed is simply defined as total distance upon total time taken. Total distance covered for total time taken. Similarly, its unit is same as the unit of speed, that is meter per second. The average velocity it is displacement upon time taken. It is displacement upon time taken. Its SI unit is meter per second. Meter per second. Now, why they are important? Because some of the numericals are there in our book which are related to these topics. Like one numerical is there that it is an example of NCERT. A woman is swimming in a pool that is 90 meter long. That is 90 meter long. The length of the swimming pool is 90 meter. She covers one round of it completely, that is 180 meter in 1 minute. In 1 minute means she moved from A to B and then again B to A. So total distance that she covered, that is 90 plus 90, that is 180 meter. And the time taken by her is 1 minute. So the total time taken by her is 1 minute. So we have to convert this minute into second, that is 60 seconds. Now the question is, find the average speed. Find the average speed, first thing. Find average velocity, second. So how we are going to count it? So first of all, the average speed is calculated by the formula total distance covered upon total time taken. So I'm going to put the value of this thing over here only. Now it will become total distance covered, that is 180 meter. Total time taken is 60 seconds. So it will become 3 meter per second. वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पूरे पूल को कवर कर दी. Secondly, average velocity. What will be the counting of average velocity? So average velocity is displacement upon time taken. वुमेन ने A से B इस डायरेक्शन में, देन B से A अगेन इस डायरेक्शन में. मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बाय द बॉडी. तो A से A कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? 90 एंड अगेन उसी पाथ में वो वापस मूव कर गई, दैट इज माइनस 90, सो 0 मीटर. So displacement will be 0 upon 60, that is 0 meter per second. The average velocity will be 0 meter per second because जो डायरेक्शन थी आने की वही सेम डायरेक्शन से वापस मूव करना था. तो वापस मूव करने के डायरेक्शन में जो हमारे मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो नेगेटिव हो जाएगा. That's why it is 90 minus 90, that is 0 meter. So the average velocity is 0 meter per second. So this is the concept of average speed and average velocity with one numerical. Now, there are some devices that are connected in our vehicles for measuring the distance and for measuring the speed. The device that is measuring, the meter that is measuring the distance
distance measuring device. This is odometer. This is odometer. Secondly, the speed measuring device. The speed measuring device. This is called speedometer. This is called speedometer. One device is there, that is distance measuring device. This is called odometer. Second is there, speed measuring device. This is called speedometer. They both are connected in the vehicles. One is for especially for measuring the distance, and second one is for measuring the speed. Now, as we have completed this topic, we are moving towards the topic of acceleration. We are moving towards the topic of acceleration. Acceleration simply means rate of change of velocity. Rate of change of velocity. The rate at which the velocity is changing, that is defined by acceleration. That is defined by acceleration. So, acceleration is denoted by small a, and that means change in velocity. Change in velocity upon time taken. Time taken. The time taken to change velocity from initial to final. मतलब जिस वेलोसिटी पे व्हीकल मूव कर रही थी और जिस वेलोसिटी पे व्हीकल पहुंच गई है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, दैट इज डिनोटेड बाय एक्सेलरेशन. सपोज व्हीकल इनिशियली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी व्हीकल की वो थी u. इनिशियल वेलोसिटी जो थी व्हीकल की वो थी u. फाइनल वेलोसिटी जो थी व्हीकल की वो थी v. Time taken is denoted by t. So the change in velocity means final minus initial, that is v minus u upon t. This is the formula of acceleration. V minus u upon t, that is final velocity minus initial velocity upon time taken. Okay, so the SI unit is, see, this is velocity, so that is meter per second upon time की यूनिट होती है सेकंड. तो ये सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा भी है दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये s की पावर 2 है. ये डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस. तो दैट इज रिटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. अब ये वेलोसिटी से कनेक्टेड है तो ये भी हमारी क्या है, वेक्टर यूनिट है. ये भी डायरेक्शन पे बेस्ड होती है. ये भी हमारी क्या है, वेक्टर यूनिट है. ये भी हमारी डायरेक्शन पे बेस्ड होती है. अब एक्सेलरेशन के दो केसेस होंगे. एक होती है बॉडी जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, एक होती है बॉडी जब वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है. तो इसे हम चाहे तो ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, वो मैं इस टॉपिक के बाद बताऊंगा. तो पहले अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मतलब अगर कोई केसेस पूछेगा, एग्जांपल एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी हुआ है कि गिव वन एग्जांपल व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है पर मिनट के हिसाब से या पर सेकेंड के हिसाब से. कि जो टाइम है उस टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के साथ चेंज हो रही है, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के साथ चेंज हो रही है. तो ऐसे कंडीशन जब बॉडी की पूछेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि कब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में होती है, तो ये कंडीशन आती है फ्री फॉलिंग बॉडी में या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी में. अब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? सपोज दिस इज चॉक. मैंने बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के सिर्फ इस चॉक को क्या किया, यहां से मैंने इसे रिलीज कर दिया. ऐसा नहीं कि मैंने इसे पुश किया या थ्रो किया नीचे की तरफ, बस मैंने क्या किया, इसे यहां से ऐसे करके रिलीज कर दिया.
ये जो बॉडी है, जो चौक थी, वो अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली चेंज करते हुए कहाँ जा रही है? अर्थ की तरफ मूव कर रही है। दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंडली, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी कंडीशन कहाँ आती है? सपोज मैं बाइक चला रहा हूँ, मैंने तुरंत एक्सेलरेटर का खींचा, तुरंत वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ गई गाड़ी की, फिर मैंने एक्सेलरेटर को डाउन कर दिया, वेलोसिटी फिर कम हो गई। तो ऐसे अनइवन मूवमेंट, अनइवन मोशन को हम क्या कहते, किस कैटेगरी में डालेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में पुट करेंगे। तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम बढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ और उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ्स में आ जाते हैं। सबसे पहला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? सपोज ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। बॉडी ने 20 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड, देन 40 मीटर 2 सेकेंड्स, 60 मीटर 3 सेकेंड्स, देन गो ऑन। अब अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। 1 2 3 4 10 20 40 60 80 एंड इट विल बी गोइंग ऑन। अब एक प्लॉट यहां बना 1 से 20 का, सेकेंड प्लॉट यहां बना 2 से 40 का, थर्ड प्लॉट यहां बना, और ऐसे करके ये कैसे मूव कर रही है? एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। सेकेंडली, द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारा ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन ना बन करके कोई कर्व फॉर्म होगा। जैसे सपोज इसी कंडीशन में 20 मीटर फर्स्ट सेकंड में, 30 मीटर सेकंड सेकंड में, और उसके सीधा 60 मीटर पे जंप कर गया, तो क्या होगा? वैल्यू अनइवन हो रही है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ को आप कैसा बनाएंगे? एक कर्व, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बस नहीं होना चाहिए, एंड दैट शोज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्डली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, अच्छा एक चीज और उससे पहले, ये जो पोर्शन है जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में होता है, ये जो हमें लाइन मिल रही है, ये स्पीड को डिनोट कर रही है। स्पीड या फिर कह सकते हैं आप वेलोसिटी को भी ये क्या कर रही है? डिनोट कर रही है ये लाइन। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में कि व्हाट इज द लाइन दैट इज डिनोटिंग बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्वांटिटी मिलती है? दैट इज स्पीड। सेकेंडली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो यहां पे वेलोसिटी, यहां टाइम, बॉडी फर्स्ट सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, फिर सेकेंड सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे? देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, एक यूनिफॉर्म रेट से आगे बढ़ रही है। ठीक है, सो अगर मेरी वेलोसिटी यहां पर है 20, यहां पर है 20, टाइम ये फर्स्ट आवर 20, सेकेंड आवर 20, थर्ड आवर 20, फर्स्ट सेकंड 20, सेकंड 20, थर्ड सेकंड 20। तो ये किस मोशन में बढ़ रही है आगे? ये ऐसे।
यूनिफॉर्म मोशन। किस मोशन में बढ़ रही है आगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है ये? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जो वेलोसिटी है टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ फाइनल भी जो है वही इनिशियल भी है, तो 20 माइनस 20 दैट इज जीरो। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी हो गई, दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नॉन और जीरो एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। सेकेंडली, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये एरिया हमारा होता है डिस्टेंस। ये एरिया हमारा होता है डिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन है बुक में, ये जो एरिया डिनोट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो क्या है? तो दैट इज शोइंग द डिस्टेंस। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कोई भी एक्सेप्ट दिस लाइन, इस लाइन के अलावा कोई भी लाइन आप बना लीजिए तो वो क्या हो जाएगी? आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस लाइन के अलावा कोई भी लाइन, कि पहले में 20 मीटर थी, फिर 30 हो गई, फिर 30 के बाद फिर 50 हो गई, तो क्या हो जाएगा? यहां से सपोज शुरू हुआ, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, तो ये इस वे में मूव करेगी। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। नाउ फाइनली द केस इज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइनली द केस इज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी है हमारी वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट में यहां अब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, मतलब फर्स्ट सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर सेकंड सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 60 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब कैसे चेंज हो रही है? कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो इसके लिए लाइन कैसी बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शोज स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब क्या केस आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ इट, स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके कोई भी लाइन बन जाए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम, कोई भी लाइन एक्सेप्ट दिस स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके अलावा कोई भी बन रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ कई सारी चीजें सीख ली। पहला यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, सेकेंडली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व एक्सेप्ट स्ट्रेट एनीवे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल बनी है टाइम एक्सिस के, मतलब यही है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिस इज एक्सेप्ट दिस पैरेलल टाइम एक्सिस, इसके अलावा कोई भी लाइन बनेगी तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन को शो करती है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है? वेलोसिटी बार बार चेंज होती है और चेंज इन द वेलोसिटी इज काउंटेड बाय एक्सेलरेशन। तो ये जीरो एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ जो एरिया है बीच का, ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस। ये जो लाइन है ये क्या बता रही है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर लाइन क्या बता रही है? आपकी स्पीड। थर्डली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाइन स्ट्रेट रहेगी, उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाइन जो रहेगी वो स्ट्रेट को छोड़ करके कोई भी हो सकती है। अब अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, मान लीजिए 80 मीटर पर सेकंड थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 40 मीटर, मतलब हमने ब्रेक लगाया और वेलोसिटी को क्या कर दिया? धीरे धीरे करके कम कर दिए, तो उस केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी कम होती है तो जो हम एक्सेलरेशन को काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।
जैसे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ acceleration as well we have discussed. So one question is there, like the type of question it is, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है u इज 80 किलोमीटर पर आवर, v इज 60 किलोमीटर पर आवर। u इज 80 किलोमीटर पर आवर and v is 60 kilometer per hour and time is given 5 seconds. Time is given 5 seconds. u is given 80 kilometer per hour, v is given 60 kilometer per hour and time is given 5 seconds. So we know the SI unit of speed is meter per second. क्या होती है मीटर पर सेकेंड? तो यहाँ ये किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी हमारी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें यूनिट को मैच करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करेंगे। तो उसको चेंज कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। वैसे डायरेक्टली अगर बोलूं तो इंटू 5/18 कर दीजिए, लेकिन अब वो करेंगे क्यों, तो उसके लिए मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं। u is 80 किलोमीटर पर आवर बिकॉज इनिशियली इट वॉज ट्रेवलिंग विद दिस स्पीड एंड फाइनल इट वॉज v इक्वल टू 60, 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 hour is equal to 3600 seconds. This is meter, this is second. Now if I'm going to cut the zeros, then 2 5 the 2 18 the. So ultimately what we have done, this 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे। इसीलिए आपको ये बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। अगर किलोमीटर पर आवर हम स्पीड दी हुई है तो डायरेक्टली इसको क्या करिए, रिड्यूस करिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, बाय मल्टीप्लाइंग इट इनटू 5/18। ये (200/9 मीटर पर सेकंड। So this is our u. v also we will directly count it by multiplying by 5/18 and it will come 50/3 meter per second. Now the term come of acceleration, तो acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, v minus q upon t। v is 50/3 minus 200/9 upon 5। तो इसका आंसर ले लेते हैं, 9 आ जाएगा, 3 150 माइनस 200/5, ये आ गया -50/9 इंटू 5। ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर रहता तो वो न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता, और ये आगे 5 बन जाए 5 10 से। सो एक्सेलरेशन इज -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस है क्यों, क्योंकि ये गाड़ी जो थी वो इनिशियली फास्ट थी और फाइनली उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले हमें क्या करना पड़ा, तो ये रिटार्डेशन का एक केस है, बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो हमें पहले टाइम को देखे 5 सेकंड लिखा हुआ है, तो हमने पहले क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए। कैसे किए, डायरेक्टली है इंटू 5/18 करिए, तो आपका मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इंटू 18/5 कर दीजिए, जस्ट अपोजिट ऑफ इट, रेसिप्रोकल ले लेना है वहां पर। हमने v भी निकाल लिया, formula a is equal to v minus u by t. This is our formula. Now we are putting the value of it and we have got the value of a is minus 10/9 meter per second square. अब कुछ और न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, बस उन वर्ड्स को पढ़ना है, वर्ड्स को पढ़ करके आपको वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे एक सिंपल सा केस बता रहा हूं, so that आपके लिए पूरे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे करने में। और वो सिंपल सा केस ये है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे सिंपल रूल तो यही होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो खुद ही बताता है कि आपको करना क्या है उसमें आगे। तो क्वेश्चन में लिखे रहेगा, अगर मान लीजिए कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर लिखा रेस्ट पहली चीज, या फिर स्टेशनरी मूवमेंट पे, या फिर स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, अगर ये दो चीजें लिखी हुई है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो इन दोनों केसेस में u इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इन दोनों केसेस में u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर लिखा हुआ है बॉडी कम्स टू, बॉडी कम्स टू पोजीशन ऑफ रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, और बॉडी कम्स टू स्टेशनरी पोजीशन। सिमिलरली ना देखिए, अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट की कंडीशन से, रेस्ट मतलब होता है बिना किसी वेलोसिटी से, एकदम जीरो से रेस्ट स्टार्ट हो रही है, तो u इज इक्वल टू 0, या स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है मतलब u इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी चलते चलते, जैसे साइकिल चल रही है, चलते चलते ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के बाद वो कहां गए, रेस्ट की पोजीशन पे आ गई, तो उस केस में या स्टेशनरी पोजीशन पे आ गई, या स्टेशनरी पोजीशन पे आ गई, तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 0। चलते चलते रुकी तो v इज इक्वल टू 0। अगर रेस्ट से चलना ही शुरू की देन u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स, मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की चलना, मतलब क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 0। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains a velocity of 6 meter per second in 6 seconds. So what will be the acceleration? The acceleration will be v minus u by t, that is 6 minus 0 by 6, that is 1 meter per second square. 1 meter per second square. So this is our basic fundamental of solving the numericals for motion. कि आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या स्टेशनरी लिखा है तो u इज इक्वल टू 0, अगर बॉडी कम्स टू रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन बोल रहा है मतलब v इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी पूरी रुकी जाए, कभी कभी ब्रेक हम गाड़ी को धीरे करने के लिए भी लगाते हैं, तो उस केस में भी वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन अगर बोला ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रेस्ट पे आ गई तब v इज इक्वल टू 0 एंड स्टेशनरी पोजीशन पे भी v इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फॉर आवर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड द सॉल्विंग ऑफ दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमारा ये पूरा चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मोशन का जो स्टार्टिंग वीडियो था, उससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी इस वीडियो को भी समझने में। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।